Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are completing the task also that we are doing in video classes. Children, you know that we are doing chapter 4, that is multiplication. And in multiplication we have done repeated addition, multiplication as repeated addition, then multiplication on number lines, then multiplication table of 6, 7, 8, 9 and 10, and then we did a grid where we multiplied tables from 1 to 10. In today's video we will be doing another table, another grid where the tables will be from 1 to 10 only, but they will not be in proper sequence. मतलब random numbers दिया रहेगा और उसके according आपको उसका multiply करके आपको आंसर पता होना चाहिए कि multiply करने पर क्या आंसर आएगा. As I have told you, multiplication is repeated addition, but when we multiply it, we do not add. We simply learn the table. टेबल को लर्न करते हैं so that our task become fast. तो यहाँ पर आपको यही करना है. अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आप इस ग्रिड को फटाफट कर पाओगे, लेकिन अगर आपको टेबल्स नहीं याद है then it will take long time because you will be adding, you will be repeatedly adding the numbers. So it's better that you should know the tables from 1 to 10 to complete such tables. Okay, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ आपके लिए टेबल. Complete the table. Children, this is given on page number 78 of your maths book. आपकी जो maths की book है उसके पेज नंबर 78 पे ये दिया गया है. ठीक है, तो ये मैं पहले आपके लिए एक तैयार कर देती हूँ टेबल. It will be like this. Then we have this. Okay, यहाँ पे multiply का sign है. Again I am repeating, this is sign of multiplication. It is not cross. इसको cross नहीं बोलेंगे. It is sign of multiplication. Then numbers are written. 5. थोड़ा बड़ा box बनाने की कोशिश करती हूँ. Then we have 2. Then 1. 7, 9, 10, 6, 8, 4, 3. Okay, here we have 6, 3, 5, 6, 3, 5, 1, 4, 8, 1, 4, 8, 9, 7, 2, 10, 9, 7, 2, and then okay, it is not इसमें आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. Let me see this. Then 2 and then 10. One more. I hope 10 is visible. Okay. The name of the chapter is not visible, तो मैं chapter का name थोड़ा और नीचे से लिख देती हूँ. Chapter 4, multiplication. Okay, and question क्या है? Complete the table. Now what we are going to do is इसको okay, so this is how actually that is not visible ना, तो यहाँ से कर देते हैं. I hope ये आपको थोड़ा सा visible है चार्ट. ये पूरा हमारा जो ग्रिड है that will be visible.
Okay, now I will draw lines. Children, I'm not using scale, so the lines are not very straight. I hope the grid is visible to you now. Now what you have to do, see some numbers are already written. As I have told you, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं और ऐसे जो होता है उसको रो बोलते हैं. मतलब ये एक कॉलम है, ठीक है. वी हैव 10 कॉलम्स एंड 10 रोज. 10 कॉलम है हमारे पास और 10 रो हैं. तो अब देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम सिक्स्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड सिक्स्थ कॉलम में नंबर लिखा है 36. ओके. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 लिखा हुआ है. देन थर्ड रो सेवेंथ कॉलम 1 2 3 4. ओके, दिस इज़ नॉट सिक्स्थ कॉलम, दिस इज़ सेवेंथ कॉलम था ये. ओके, मैंने 6 नंबर देख के 6th कॉलम बोले. दिस इज़ सेवेंथ कॉलम. ओके, चलिए अभी थर्ड रो है. दिस इज़ थर्ड रो एंड कॉलम इज़ फोर्थ कॉलम 35. ओके. देन फोर्थ रो एंड 8th कॉलम. दिस टाइम इट इज़ 8th only. ओके, so 8. Then here we have fifth row. Okay, fifth row and sixth column. Fifth row and sixth column में लिखा है 40. Okay, then we have sixth row. Sixth row first column is 40. Then seventh row and 9th column 36. Then 8th row and 5th column, 8th row and 5th column 63. Then 9th row and 10th column, and then 10th row and 3rd column. These numbers are already written on the grid. Grid के ऊपर पहले से ही ये लिखे हुए हैं. ठीक है, कैसे लिखे हैं ये आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ. 6 times 6 और 36. 6 times आप 6 को ऐड करोगे तो 36 आएगा. 3 twos मतलब 2 को 3 टाइम ऐड करने पर 6 आएगा. या 2 threes मतलब 2 times 3 को ऐड करोगे, 3 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, 3 + 3 तो 6 आएगा. या 2 को 3 टाइम ऐड करोगे तो भी 6 आएगा. ठीक है, 3 को 2 टाइम्स ऐड किया, 2 threes 6. या 3 twos 3 times 2 तो 6 आएगा. तो 3 twos are 6 या 2 threes are 6. Okay, now 5 sevens. 5 sevens मतलब 5 times 7. 5 sevens मतलब 5 times 7. 5 sevens are 35 या 7 fives are 35. 7 times 5 या 5 times 7 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा. तो टेबल में कैसे पढ़ेंगे? 5 sevens are 35 या 7 fives are 35. ओके. सिमिलरली 1 8 या 8 ones. 1 8, एक बार 8 लिखोगे तो 8 ही रहेगा. या 8 times 1 1 लिखोगे तो 8 ही आएगा. तो टेबल में कैसे बोलेंगे? 1 8s are 8 या 8 1s are 8. नंबर 4, यहाँ पे देखिए 4 लिखा है तो 4 10s are 40 या 10 4s are 40. मतलब 4 10s. 4 10s मतलब 10 को 4 टाइम ऐड करो. 4 10s मतलब 10s को 4 टाइम ऐड करोगे तो 40 मिलेगा.
या 10 टाइम्स 4 को ऐड करो, 10 बार 10 बार 4 को ऐड करोगे तो 40 होगा। ठीक, नेक्स्ट 8 को 5 टाइम, 8 5s मतलब 5 को 8 बार ऐड करने पर 40 मिलेगा। 5 को अगर आप 8 बार ऐड करोगे यू विल गेट 40, या फिर 8 को 5 टाइम्स ऐड करो, 8 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 40। 8 5s आर 40 या 5 8s आर 40। 9 4s आर 36, 4 को 9 बार ऐड करने पर 36 आएगा, या 9 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 36 आएगा। 9 4s आर 36 या 4 9s आर 36। गॉट इट? नेक्स्ट 7 9s, 7 9s मतलब 9 को 7 बार आप ऐड कर रहे हो, 9 को 7 बार ऐड करोगे तो 63 आएगा, या 7 को 9 बार, 9 को 7 टाइम्स ऐड करो या 7 को 9 टाइम्स ऐड करो तो आपको 63 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 7 9s आर 63 या 7 9s आर 63 या 9 7s आर 63। ओके, 7 9s आर 63 या 9 7s आर 63। नेक्स्ट इज 2। ओके, 2 3s आर 6 या 3 2s आर 6। 10 1s आर 10 या 1 10s आर 10। 10 1s मतलब 1 को आप 10 बार लिखोगे तो 10 रहेगा, या 1 को बस या 1 10 एक बार 10 लिखोगे तो 10 ही रहेगा। ठीक है, सो वी कैन से 1 10s आर 10 या 1 10s आर 10। 10 1s आर 10, 1 10s आर 10। आई होप ये आपको ग्रिड समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसके बाकी का जो मल्टीप्लाई है दैट वी विल डू। सो लेट्स स्टार्ट। 6 5s आर, 6 5s आर कितना होता है? 6 5s आर 6 5s आर या 5 6s आर दोनों ही सेम आएगा। 6 5s आर 30 या 5 6s आर 30। 3 5s आर 15 या 5 3s आर 15। 5 5s आर 25। 1 5s आर 5 या 5 1s आर 5। 4 5s आर 20 या 5 4s आर 20। 8 5s आर 40 या 4 5s आर 4 या 8 5 8s आर 40। 9 5s आर 45। 5 9s आर 45। 7 5s आर 35। 7 5s आर 35 या 5 7s आर 35। 2 5s आर 10। 5 2s आर 10। 10 5s आर 50। 5 10s आर 50। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 1 कॉलम, हमने पूरा एक कॉलम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के कॉलम को भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नाउ let's complete the other column. 6 2s are 12. 6 2s are 12 या 2 6s are 12, which means 6 2s मतलब 2 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो 12 आएगा, या 2 6 मतलब 6 को 2 टाइम्स 2 6 2 बार 6 + 6 करेंगे तो 12 आएगा। ओके, नाउ 3 2s are 6। 3 2s मतलब 3 टाइम 2 या 2 टाइम 3 तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी आपको। 5 2s मतलब 2 को 5 टाइम 5 2s कितने 2s 5। 5 2s मतलब कितना होगा? 5 2s आर 10 या 2 5s कितने 5s 2 5s 2 5s विल गिव 10। 5 2s आर 10 या 2 5s आर 10। नेक्स्ट इज 1 2s। 1 2s आर 2 मतलब 2 को एक बार लिखोगे तो 2 ही रहेगा, या 2 1s 1 2 1s 1s कितने 2 2 1s 2 बार 1 1 लिखने से क्या होगा 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4 2s कितने 2s 4 2s 4 2s आर 8
या 2 4s, कितने 4s? 2 4s will make 8. 8 2s, कितने 2s? 8. 8 2s are 16 या 2 8s, कितने 8? 2 8s will give you 16. 8 2s are 16 या 2 8s are 16. Next is 9 2s. 9 2s, कितने 2s? 9. 9 2s are 18 या 2 9s, कितने 9s? 2 9s will give 18. 9 2s are 18, 2 9s are 18. Next 7 2s. 7 2s मतलब 7 2s are 14. 7 2s, कितने 2s? 7 times 2s will give 14 या 2 7s, कितने 7s? 2 7s will give you 14. 2 2s, 2 बार 2 लिखेंगे तो आएगा 4. ओके. 10 2s, कितनी बार 2? 10 times 2s will give 20 या 2 10s, कितने 10s? 2 10s will give you 20. So here we have completed 2 columns. Children, I am doing this in a column way. हम रो वाइज भी इसको कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कॉलम वाइज ही करना है. यू कैन डू इट रो वाइज ऑल्सो. कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. रो वाइज भी मैं करके दिखा देती हूँ. 6 1s, कितने 1s? 6 1s. 6 बार 1 विल गिव यू 6. 1 को आप 6 बार लिखोगे तो 6 ही मिलेगा या 1 6, एक बार 6 लिखोगे तो भी वो 6 रहेगा. 6 7s. 6 7s, कितने 7s? 6. 6 बार 7 करेंगे, 6 7s are 42 या 7 6, कितने 6? 7 6 will give you 42. So 6 7s are 42, 7 6 are 42. Okay. Next 6 9s. 6 9s, कितने 9s? 6. 6 बार 9, 6 9s are 54 या 9 6, 9 times 6, 9 बार 6 लिखेंगे. 9 6 are 54. 6 10s are 60, कितने 10s? 6 10s. 6 10s will give you 60 या 10 6, 10 times 6, 10 6 will give you 60. So पढ़ेंगे कैसे? 6 10s are 60 या 10 6 are 60. This I had already explained. Now moving on to this one. 6 8s are 48. 6 8s are 48, कितने 8? 6 8 या 8 6. 8 times 6 ऐड करेंगे तो 48 होगा या 6 times 8 को ऐड करेंगे तो 48 आएगा. 6 8s are 48 या 8 6 are 48. Then 6 4s, कितने 4s? 6 4s. 6 4s are 24 या 4 6, कितने 6? 4 6 are 24. So 6 4s are 24 या 4 6 are 24. Next 6 3s are 18, कितने 3s? 6 3s. 6 3s are 18 and 3 6 are 18. Okay. Next 3 1s. ये हमने देखिए रो कंप्लीट किया. तो ऐसे रो वाइज भी कर सकते हैं या आप कॉलम वाइज कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. आप जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिसमें भी आप, होना तो आंसर सेम ही है. चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें. ठीक है. रो एंड कॉलम बोथ विल गिव सेम आंसर. आपका आंसर नहीं चेंज होगा. सो डोंट वरी कि हम ऐसे करें या ऐसे करें. ठीक है. चलिए. 3 1s are 3 या 1 3s are 3. 5 1s are 5, 1 5s are 5. 1 1s are 1, 4 1s are 4 या 1 4s are 4. 8 1s are 8, 1 8s are 8. 9 1s are 9, 1 9s are 9.
7 ones are 7, 1 sevens are 7, 2 ones are 2, 1 twos are 2. हो गया कॉलम कंप्लीट. सो फॉर दिस आपको याद रहना चाहिए टेबल्स. टेबल्स याद रहेगा तो आप इसे बड़े आराम से कर पाएंगे. ठीक है, चलिए अब इसको आगे का करते हैं. 3 sevens are 21 या 7 threes are 21. 1 sevens are 7, 7 ones are 7. 4 sevens are 28, 7 fours are 28. 8 sevens are 56, 7 eights are 56. Okay, next 9 sevens are 63, 7 nines are 63. 7 sevens are 49, 2 sevens are 14, 7 twos are 14, 10 sevens are 70, 7 tens are 70. ओके, आई होप जिसको भी ये टेबल आता है उसके लिए बहुत इजी है. जिसको टेबल नहीं लर्न है बस उसी को प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करें. थ्री नाइन्स आर 27 या 9 threes are 27. आप ये ध्यान दीजिएगा, 3 nines मतलब 3 times 9s और 9 threes मतलब 9 बार 3. ठीक है, 3 nines कितने 9s? 3 nines. और 9 threes मतलब 3 9 times. 5 nines कितने 9s? 5 nines. या 9 5s, 5 कितने? 9. 5 nines are 45. या 9 times 5, 9 5s are also 45. 1 nines are 9 या 9 ones are 9. 4 nines are 36. 4 nines कितने 9s? 4 nines will give 36. या फिर 9 times 4, 9 times 4 will give 36. 8 nines are 72. 8 nines कितने 9s? 8 nines will give you 72. या फिर 9 times 8 will give you 72. Next, 9 nines are 81. 9 times 9s will give 81. 9 nines are 81. 2 9 कितने 9? 2 nines 18. या 9 times 2, 9 times 2 2 करेंगे तो 18 आएगा. 10 nines कितने 9s? 10 nines will give you 90. या 9 tens, 9 बार 10 लिखेंगे तो भी 90 आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए. 3 tens are 30, 10 threes are 30. 3 tens, 3 बार 10, 3 tens will give 30. या 10 times 3 लिखेंगे तो भी 30 आएगा. 5 tens कितने tens? 5 tens will give 50. या 10 times 5 लिखेंगे तो भी 50. 10 5s. 1 10 is 10 या 10 times 1 लिखेंगे तो भी 10. 8 tens कितने tens? 8. 8 tens will give 80. या 10 times 8 लिखेंगे तो भी 80. 9 tens, 9 times 10s लिखेंगे तो 90. या 10 times 9 लिखेंगे तो भी 90. 2 tens कितने tens? 2 tens will give 20. या 10 times 2 will give 20. सॉरी 7 है ना. 10 sevens कितने sevens? 10 sevens are 70. या 7 times 10 tens करेंगे, 7 tens will give 70. 2 tens are 20. 10 tens are 100. नेक्स्ट देख लेते हैं.
3 6 are 18. 3 6 are 18. 5 6 are 30. 1 6 are 6. 4 6 are 24. 8 6 are 48. 9 6 are 54. 7 6 are 42. 2 6 are 12. 10 6 are 60. अब उल्टा दिखा दूँ. 6 6 are 36. 6 3s are 18. 6 5s are 30. 1 6 are 6. 6 4s are 24. 6 8s are 48. 6 9s are 54. 6 7s are 42. 6 2s are 12 and 6 10s are 60. आंसर आप जैसा मैंने बोला कि आप इधर से कीजिए या उधर से कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर. आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है. ठीक है. लेट्स डू द नेक्स्ट कॉलम. 3 8s are 24. 8 3s are 24. 5 8s are 40 या 8 5s are 40. 4 8s are 32 या 8 4s are 32. 8 8s are 64. 9 8s are 72 या 8 9s are 72. 7 8s are 56 या 8 7s are 56. 2 8s are 16. 8 2s are 16. 10 8s are 80. 8 10s are 80. समझ में आ गया आपको? रो एंड कॉलम दोनों से आप इसको चेक कर सकते हैं. आंसर आपको दोनों में ही सेम मिलेगा. जैसे आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हम 2 को 10 टाइम्स कीजिए या 10 को 2 टाइम्स कीजिए, आंसर आपका सेम आ रहा है. ठीक है. वी आर डूइंग रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन इज शॉर्टकट ऑफ रिपीटेड एडिशन. हमको बार बार ऐड नहीं करना पड़ता. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल. आप यू हैव टू लर्न द टेबल. इसके लिए आपको टेबल तो लर्न करना ही पड़ेगा. ठीक है. चलिए. 3 4s are 12. 5 4s are 20. 1 4s are 4. 4 4s are 16. 8 4s are 32. 7 4s are 28. 2 4s are 8. 10 4s are 40. ओके. ये हमने इससे कर लिया. इधर से भी आप चेक कर सकते हैं. 4 6s are 24. 4 3s are 12. 4 5s are 20. 4 1s are 4. 4 4s are 16. 4 8s are 32. 4 9s are 36. 4 7s are 28. 4 2s are 8 and 4 10s are 40. नेक्स्ट. अब लास्ट हमारा कॉलम रह गया है. 3 3s are 9. 5 3s are 15 या 3 5s are 50. ओके. 1 3s are 3 या 3 1s are 3. 4 3s are 12 या 3 4s are 12. 8 3s are 24 या 3 8s are 24. 9 3s are 27 या 3 9s are 27. Now 7 3s are 21 या 3 7s are 21. ये तो हमारा है ही है. 10 3s are 30
या 3 10s are 30. This is how we have completed the grid. ये सारा मल्टीप्लिकेशन टेबल से ही रिलेटेड है. लर्न टेबल फ्रॉम 2 to 10. आई एम श्योर आपको याद तो पहले से ही है, आपको याद होगा टेबल, ऐसा नहीं है कि आपको टेबल नहीं याद होगा. तो इसके साथ ही हमने ये ग्रिड कंप्लीट कर लिया. अब हमारा बचा है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो है, दैट वी विल डू. एंड देन देयर इज़ अ फन टाइम. मल्टीप्लिकेशन गेम है एक, फिर मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग है, मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज़ है अभी तो, फिर फन टाइम फ्रूट शॉप पजल है, एक्टिविटी वर्कशीट है. दिस लॉट मोर टू बी डन. वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.